دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ماہ مبارک سفر المظفر کا مقدس مہینہ ہے، جو کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کے بعد آتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت اور بزرگ ہستی کا نام حضرت سید وارث علی شاہ یعنی حاجی وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے وارث پاک کی سیرت پاک کے بارے میں مختصر طور پر بیان کیا اور آپ لوگوں نے دل سے سماعت کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وارث پاک کی کچھ کرامتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کرامتیں جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں، آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس بیان کو بغور سماعت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وارث پاک کی کرامتوں کا ظہور بچپن سے ہی ہونے لگا تھا، کیونکہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر شریف بڑھتی گئی، ویسے ویسے آپ کی کرامتوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ کرامت میں کن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے وارث پاک کی کرامتوں کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سنیں، ایمانی اور اسلامی نقطۂ نظر سے شریعت کی اتباع اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ہی سب سے بڑی کرامت ہے، کیونکہ ولی ہونے کے لیے جہاں مومن اور مسلمان ہونا ضروری ہے، وہیں متقی اور پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: اذا رأیت رجلا علی الماء ویطیر فی الہواء وترک سنتا من سنتی فاضرب بالنعلین، یعنی اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو پانی پر دوڑتا ہو اور ہوا میں اڑتا ہو اور میری سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑتا ہو تو اس کو جوتوں سے مارو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شخص اپنے کسی جادو کی وجہ سے پانی پر دوڑ رہا ہو یا ہوا میں اڑ رہا ہو، لیکن اگر وہ شخص میری سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ رہا ہے، اگر وہ شخص متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، تو ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کے لیے متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عامل ہونا ضروری ہے، اور سرکار وارث پاک کی پوری حیات مبارکہ اور اس کا ایک ایک لمحہ شریعت مطہرہ کی اتباع، سنت رسول کی پیروی اور دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت میں گزری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نگاہ رحمت اور بیجا شفقت و محبت نے بے شمار لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ ہونے کا شرف عطا فرمایا اور بھٹکنے والے لوگوں کو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر گامزن فرمایا، سیدھے راستے پر چلایا۔ الفت و محبت کی ایک ایسی فضا قائم کی جس سے شکوک و شبہات
नफरत व कुदूरत के जज्बात ख़त्म हो गए। आपकी बहुत सारी करामतें हैं। उन करामतों में से चंद करामतें हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मुलाहज़ा फरमाएं और ईमान में ताज़गी पैदा करें। किताब का नाम है हाजी वारिस अली शाह यानी सीरत मुबारका और तालीमात। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम हयात वारसी है। उन्होंने अपनी इस किताब में वारिस पाक की ये करामत तहरीर फरमाई है कि एक मर्तबा हज़रत वारिस पाक लखनऊ के ज़िला मलिहाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अपने एक मुरीद मोहम्मद अहमद खां वारसी के यहाँ तशरीफ़ ले गए और ये बात आम तौर पर मशहूर थी कि बरहना पाँव यानी नंगे पाँव चलने के बाद भी सफ़ेद चांदनी पर आपके पाँवों के निशान नहीं बनते हैं। ये बात मोहम्मद अहमद खां वारसी और उनके घर की ख़वातीन ने भी सुन रखी थी। इम्तिहान और आजमाइश की गरज से कि जो सुना है उसको माथे की निगाहों से देखा भी जाए ताकि ईमान में और ज़्यादा मजबूती पैदा हो जाए। चुनांचे घर की ख़वातीन ने बाहर पैगाम भिजवाया क्योंकि वारिस पाक घर के बाहर बैठे हुए थे। इसीलिए ख़वातीन ने बाहर पैगाम भेजा कि हम भी सरकार की ज़ियारत करना चाहते हैं। मोहम्मद अहमद खां साहब ने सरकार वारिस पाक की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर हमारे घर की औरतें भी आपकी ज़ियारत करना चाहती हैं। आपने फरमाया ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। जैसे ही औरतों ने हज़रत वारिस पाक की आमद की खबर सुनी, फ़ौरन फ़र्श बिछवाया, फ़र्श का इंतज़ाम करा दिया और नहायत ही सफ़ेद और चमकदार साफ़ व शफ़ाफ़ चांदनी बिछवाई और रास्ते में पानी छिड़क दिया। हज़रत वारिस पाक अंदर तशरीफ़ ले गए और एक जगह नशिस्त फरमाई यानी एक जगह जा कर के आप बैठ गए। बैठने के बाद इरशाद फरमाया, देख लो भाई कहीं तुम्हारी चांदनी पर दाग तो नहीं लगा। मोहम्मद अहमद खां साहिब ने अर्ज़ किया, हुजूर क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। वारिस पाक ने फरमाया कि मतलब ये है कि तुम्हारे घर की औरतों ने इम्तिहान लेना चाहा था कि देखेंगे कि हजरत के पाँवों के निशान चांदनी पर बनेंगे या नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देख लो कहीं तुम्हारी चांदनी पर दाग तो नहीं लगे। ये सुनकर सारी ख़वातीन कदमों पर गिर गईं और अर्ज़ की, हुजूर हमें मुआफ़ कर दें, इसलिए कि हमने सिर्फ सुना था मगर हम देखना भी चाहते थे। आपने फरमाया कि फ़कीरों को आज़माते नहीं हैं। ख़वातीन ने माज़रत तलब की और आपने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। हज़रात, आपकी इस करामत से ये मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की नज़र लोगों के ज़ाहिर व बातिन दोनों पर होती है। वो दिलों की बातों को जान लेते हैं। इसीलिए तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह वालों के दरबार में जाओ तो दिल पर काबू रखो और दिल को संभाल कर रखो, क्योंकि इंसान के दिल में जो भी ख़यालात आते हैं अल्लाह वाले उन्हें मुलाहज़ा फरमाते हैं। आइए एक और वाक़या मुलाहज़ा करें। ये वाक़या भी लखनऊ के मलिहाबाद का है। हज़रत वारिस पाक बशीर अहमद खां वारसी जो कि जोश मलिहाबादी के वालिद थे, उनके घर में ख़वातीन को बैत से मुशर्रफ़ व सरफराज फरमा रहे थे और दो नौकर आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। एक दूसरे के कान में आपस में बातें कर रहे थे कि फूस और आग को एक जगह जमा नहीं करना चाहिए। उनका मतलब ये था कि लाख फ़कीर हों, लाख अल्लाह वाले हों, मगर औरतों को सामने नहीं आना चाहिए। सरकार वारिस पाक ने बैअत लेने के बाद
उन दोनों नौकरों को अपने पास बुलाया और उनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों फूस और आग लेकर आओ। वो दोनों ये सुनकर पहले तो घबराए, लेकिन हुक्म की तामील करना भी ज़रूरी था, इसलिए फ़ौरन ही फूस और आग लेकर हाजिर खिदमत हुए। आपने फरमाया कि अब आग पर फूस रखो और आग से फूस को जलाने के लिए फूंक मारो। उन्होंने हुक्म की तामील करते हुए फूंक मारना शुरू की। बहुत कोशिश की मगर फूस में आग न लगा सके। दोनों हैरानों पशेमान होकर कदमों पर गिर गए। आपने इरशाद फरमाया कि आग भी है और फूस भी, लेकिन दोनों एक दूसरे से गैर मुतासिर हैं, दोनों एक दूसरे पर असर नहीं कर रही हैं। जब नौकरों ने ये मंजर देखा तो शर्मिंदगी का इजहार किया और बड़े शर्मिंदा हुए। उनकी बदगुमानी शर्मिंदगी में बदल गई और उन्होंने माज़रत तलब की। आपने फरमाया, आज के बाद कभी भी ये गुमान न करना कि फ़कीर और औरतों को एक जगह जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो अल्लाह वाला होता है वो दुनिया और दुनिया की तमाम ख्वाहिशात से बेजार होता है, वो तारिकुद दुनिया होता है, और जिसे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो जाती है वो दुनिया की किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करता है। इन दोनों वाक़यात से हज़रत वारिस पाक की करामात का भी ज़हूर हो रहा है और साथ ही साथ आपकी अज़मत व शान का इजहार भी हो रहा है। हज़रात, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात तारीख़ के औराक़ में भरे पड़े हैं, मगर अभी वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि सारे वाक़यात आपके सामने बयान किए जाएं। लिहाजा इन्हीं बातों पर हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इन्हीं करामतों को बयान करने के बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा कभी मौका मिलेगा तो फिर हम आपके सामने इसी तरह की और वीडियोज़ हाज़िर करेंगे। लिहाजा आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी। अगर अच्छी लगी और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपकी खिदमत में इसी तरह की दीनी जानकारी पेश करते रहें और आप हमारी वीडियो को देखने वाले पहले शख्स हों और हमारी मोहब्बतों का इजहार करते हुए और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए लाइक और कमेंट भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।